Advantages of SI system. What are its advantages? Right? First, SI system is coherent system of unit. Write down. SI system is coherent system of unit. What do you mean by coherent? Coherent का मतलब क्या है? All the derived units, it means all the derived units can be obtained by multiplying or dividing fundamental units. All the derived units can be obtained by multiplying or dividing the fundamental unit. Like velocity था, velocity is displacement upon time. So here you are dividing which two fundamental units, length and time. Right? So what is the unit of length? Meter. What is the unit of time? Second. So it is meter per second. Second is SI system is rational. SI system is rational. Yes, first is clear to all of you. SI system is coherent, that all the derived units can be obtained by simply multiplying or dividing the fundamental units in SI system. जैसे हमने वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसके यूनिट्स क्या बन गए? मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या है? सिंपली हम इनको डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो यू कैन ऑब्टेन द डिराइव्ड यूनिट्स. नेक्स्ट इज SI system is rational. Rational means it use only, in this system there is only one unit for one physical quantity. आपके एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एनर्जी, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? कैन यू टेल मी व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, इट इज जूल. Yes, SI unit of energy is joule, right? But in other system of unit like CGS, MKS and FPS system, in other system, different types of energies like mechanical energy possess the units as joule. Heat energy possess the unit as heat energy, having the unit as calorie. हीट एनर्जी के यूनिट क्या हो जाते हैं? कैलोरी. आपके पास जो दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज हैविंग द यूनिट एज वॉट सेकेंड. कैसे? पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी क्या हो गया? पावर इनटू टाइम. तो पावर हो गया वॉट और टाइम क्या हो गया? सेकेंड. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी इज हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट. सबके यूनिट्स क्या होंगे? अलग अलग. Mechanical energy joule, heat energy is calorie, electrical energy watt second. But in SI system all the types of energy having the unit as joule. जितनी भी energies हैं इन सबके units क्या होंगे? joule. Rational means common कर दिया. Yes, is it clear? बेटा? Please give your response. Yes, ma'am. Next is SI is metric system. SI is a metric system of unit. What do you mean by metric system? Metric system means the multiples and submultiples are in the power of 10. ये multiples क्या होते हैं? Multiples and submultiples are expressed as पावर ऑफ 10. ठीक है. जैसे आपको 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करोगे? 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर्स. ठीक है. तो आप कितनी पावर से? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे. राइट. इफ़ यू चेंज 1 मीटर टू 1 किलोमीटर तो क्या करोगे? 1/1000 से डिवाइड करोगे.
तो हम इसको बोल सकते हैं 10⁻³ ये मल्टीपल्स हैं। जब पावर क्या है पॉजिटिव, और जब पावर नेगेटिव है तो ये क्या है सब मल्टीपल्स। पावर पॉजिटिव मल्टीपल्स, पावर नेगेटिव सब मल्टीपल्स। इज इट क्लियर? मल्टीपल्स जब आपकी पावर क्या होगी पॉजिटिव, और जब सब मल्टीपल में पावर क्या होगी नेगेटिव। तो SI इज़ अ metric system in which the multiples and sub multiples are expressed as power of 10. बट अगर आप देखें किसी दूसरे सिस्टम में लाइक FPS, 1 फुट इक्वल टू हाउ मैनी इंचेस, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 1 इंच इक्वल टू दिस, दैट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट देयर। आपको लर्न करना भी मुश्किल हो जाता है कि 1 फुट में इतने इंचेस है, 12 इंचेस है, फिर 12 इंचेस को फर्दर मल्टीप्लाई करें। बट इन SI सिस्टम इट इज़ अ मीट्रिक सिस्टम, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 इट इज़ ईजी टू मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 10। येस, इज इट क्लियर? करें आगे? ऑल ऑफ यू हैव डन दिस? फोर्थ advantage is SI is an absolute system of unit. SI is an absolute system of unit. What do you mean by absolute system of unit? ये हम थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे. In this absolute system of unit there is no gravitational unit. There is no gravitational unit. इसका मतलब क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे. देर इज़ नो ग्रेविटेशनल यूनिट. इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट नहीं होती. सो नो नीड टू डिवाइडेड बाय द फैक्टर g एंड मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर g. इसका मीनिंग क्या है एब्सोल्यूट सिस्टम का? देखिए, एक फोर्स की यूनिट आप जैसे पढ़ते हो, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स? इट इज़ न्यूटन. क्या होती है SI यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन. अगर आप दूसरे यूनिट लें ग्रेविटेशनल यूनिट लाइक किलोग्राम वेट, ग्राम वेट, कभी सुना है बेटा ये? 9th 10th में कहीं पढ़ा है? किलोग्राम वेट एंड ग्राम वेट. डू यू नो? Yes. Are you present or not? Ayush, have you listened about this? Yes, ma'am. Where are you, Ayush? Outside the home. Ayush, Yes, ma'am. कहाँ पर हो आप? घर पे. तो this kilogram weight and gram weight, do you know? Suppose if I will ask from you your weight, you say 40 kilogram. Basically it is 40 kilogram weight of man. So what you will do, you will multiply it with g, 9.8. This is 40 into 9.8 Newton. Is it clear, Aditi? Is it clear, Aditi? Yes, ma'am. So Yes, please ma'am. give your response. ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही एकदम डल क्लास हो जाए कि कुछ समझ ही ना आए. रक्षिता, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. समीर. Yes, ma'am. So we are saying this is there is no gravitational unit. तो SI सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता. But in other system like kilogram weight, gram weight, you have to change kilogram weight into Newton. So you have to multiply it with the value of g. 40 into 9.8 Newton. You will get the value of force या weight here. Right? So these are the 4 advantages of SI system. Now the next is एब्रीवेशन इन पावर ऑफ 10. कुछ मैं एब्रीवेशन बता रही हूँ, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ी हुई है, बट यू मस्ट राइट इट हेयर ऑल्सो. एब्रीवेशन इन पावर ऑफ 10. एब्रीवेशन इन पावर ऑफ 10. अब हम कुछ सिंबल यूज़ करते हैं, इनको बोलते हैं प्रीफिक्स, और ये इनके सिंबल हैं. मेक दिस टेबल एंड देन इट इज़ मल्टीपल. ये मल्टीपल, अभी हमने जो बात की थी मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स आर इन पावर ऑफ 10. सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डेका. आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी हुआ ये डेकामीटर. डेकामीटर इज़ 10⁻1. हेक्टो वर्ड यूज़ करते हैं, हेक्टोमीटर. इट्स सिंबल इज़ H एंड इट मीन्स 10⁻2. किलो आप सबको पता है, K सिंबल होता है और इसका मल्टीपल 10⁻3. इसका मतलब 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻3 से. 1 हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज करना हो किससे मल्टीप्लाई करोगे?
10⁻², से. 1 डेकामीटर को करना हो तो 10⁻1 से. मेगा, do you know about mega? Its symbol is capital M and you multiply it with 10⁻6. Then it is giga. Giga is capital G. It is 10⁻9. Then it is tera. Capital T, 10⁻12. Then it is peta. Capital P, 10⁻15. Exa. E, that is 10⁻18. These are multiples. These are multiples and their symbol is this. जैसे suppose 1 megawatt is equal to how many watt? आपने यहाँ से देखना है मेगा में कितने मल्टीपल्स आएंगे. 10⁻6. सो 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 वॉट. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 10⁻3 grams. You can see the multiples from here. 1 gigahertz. कभी सुना है 1 gigahertz? कहीं सुना है बेटा? आप में से आईपी किस किस के पास है? गीगाहर्ट्स, जो आपके स्पीड आती है नेटवर्क की, गीगाहर्ट्स, दैट इज 10⁻9 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी. तो आपको इन प्रीफिक्स से पता चलता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दीज मल्टीपल्स. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. In the same way, yes, you have submultiples. Submultiples are, make one more table, prefix, symbol and submultiples. Submultiples are the power of 10 is negative. Submultiple like deci. Deci is D, 10⁻⁻1. 1 decimeter equal to 10⁻⁻1. Centi, किसी का ऑडियो ऑन है? कुणाल, आपका ऑडियो ऑन है बेटा, ऑडियो माइक ऑफ करो. सेंटी, दिस इज C, 10⁻⁻2. मिली, M, 10⁻⁻3. माइक्रो, ये सिंबल होता है म्यू का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आप लास्ट ईयर यूज़ करते होंगे, 10⁻⁻6. नैनो, 10⁻⁻9. पीको, 10⁻⁻12. फेम्टो, 10⁻⁻15. एटो, 10⁻⁻18. राइट. अगर आप 1 नैनो मीटर यूज़ करें, 1 नैनोमीटर का मतलब क्या है? 10⁻⁻9 मीटर. राइट. 1 डेसीमीटर, 10⁻⁻1 मीटर. ये हम आगे यूज़ करेंगे सारे. सो यू मस्ट नो अबाउट दीज मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स. Yes, is it clear? If there is any doubt, then you can ask. Multiples and submultiples. All of you have written it? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, the next is some common units, some small units used for measuring length at microscopic level and at macroscopic level. Microscopic level means at a very small level. You can use the practical units for measuring. Practical units for measuring. अभी आपके फिजिक्स नहीं स्टार्ट हुई, अभी मैं आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स ही बता रही हूँ. For measuring small distances. प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस. अगर आपको स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करना है तो हम कौन कौन सी यूनिट्स यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पहली फर्मी. आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे एटॉम, जो न्यूक्लियर साइज होता है दैट इज़ 1 फर्मी. और 1 फर्मी जो होता है वह FM इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर. राइट. इट इज़ यूज्ड फॉर द measurement of atomic distances.
आपके जो एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं उसमें। फिर आता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, और इसका सिंबल होता है ए के ऊपर ये जैसे डिग्री वाला सिंबल लगाते हो ना वैसे ही। ये फर्मी का एफएम, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जनरली जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है वो हम एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। फिर आता है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। ये भी हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही मेजर करता है। 4th माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर। ये तो हमारे स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द स्मॉल डिस्टेंसेस, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। ये आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन, यू मस्ट नो अबाउट दिस। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस, आप सब ने सुना होगा लाइट ईयर। सुना है कहीं? डू यू नो अबाउट लाइट ईयर? Yes, ma'am. Yes, to measure the long distances like distance between the planets, जो भी आपके एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस हैं ऑब्जेक्ट्स के। सो व्हाट इज़ लाइट ईयर? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। तो इसमें आप क्या यूज़ करोगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर इज़ द टाइम, यू हैव टू चेंज इट इनटू सेकेंड्स। 1 ईयर में कितने डेज? 365 डेज। 1 डे में कितने आवर्स? 24 आवर्स। 1 आवर में कितने सेकेंड्स? 3600। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 लाइट ईयर इज़ 9.467 × 10⁻15 मीटर। 9.467 × 10⁻15 मीटर। कितना होगा ये डिस्टेंस? व्हाट इज़ दिस? ये तो सबको पता होगी ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। 1 ईयर को हमने सेकेंड्स में चेंज किया तो 1 लाइट ईयर कितना आ गया? 9.467 × 10⁻15 मीटर। स्टूडेंट, दीज आर दी थिंग्स ओनली टू अंडरस्टैंड, नथिंग इज़ आस्क्ड अबाउट दिस इन एग्ज़ाम। इसमें एग्ज़ाम से कुछ सिर्फ आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूछी जाती हैं, एडवांटेजेस, कैरेक्टराइज और क्वांटिटी की मेजरमेंट। ये वाला टॉपिक सिर्फ समझने के लिए, यू मस्ट नो, बिकॉज यू आर साइंस स्टूडेंट, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस। करें आगे? यस करें बेटा। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बिगर आपके जो यूनिट्स हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल? इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। ये मीन डिस्टेंस क्या लेने की ज़रूरत पड़ गई हमें? इट इज़ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। वाई वी विल टेक दिस मीन डिस्टेंस? देखो, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्स कहीं आपने पढ़ा है? एक सर्कल होता है, एक इलिप्स होता है। सन जो है वो अर्थ जो है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जब अर्थ अवे फ्रॉम द सन है तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है। जब अर्थ यहाँ आई
तो उसका डिस्टेंस r2 हो गया, जब अर्थ यहाँ आई तो डिस्टेंस r3 हो गया, जब ये यहाँ आई तो r4। इस तरह से जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो आप इन सब का क्या ले लो, मीन। This is one astronomical unit. It is defined as the mean distance of Earth from the Sun. In some position, Earth is away from the Sun. In some position, the Earth is very close to the Sun. You take all the distances mean, and this is astronomical unit. And one astronomical unit is 1.496 into 10 to the power 11 meter. No need to learn it, only you know about this क्या होता है सिर्फ ये एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AU से। तो हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस कौन से पढ़े, लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट इज पारसेक, सेकेंड इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड थर्ड इज पारसेक। पारसेक क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच, लिख लो पहले से, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच an arc of one astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc। अगर आप एक आर्क ले लें जिसकी लेंथ कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अभी आपने निकाला 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, तो वो कितने डिस्टेंस पे कितने सेकंड का एंगल सबटेंड करेगी, 1 सेकेंड। डू यू नो एंगल इज मेजर्ड इन सेकेंड ऑल्सो, राइट। ये कितना डिस्टेंस होगा, 1 पारसेक। बोरिंग लग रहा होगा आज आपको, है ना, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ तक ही बोरिंग है बस। तो 1 पारसेक जो होता है, आपने थीटा पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो 1 सेकेंड का एंगल और लेंथ आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और रेडियस आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1 पारसेक, दिस इज़ 1 पारसेक। तो आपको सिंपली इसको डिफाइन एक तरह से पढ़ लेना और कुछ नहीं करना। यस, इज इट क्लियर? यस मैम। तो इसको सिर्फ आपने रीड करना है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, ठीक। अब हम कल स्टार्ट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। तो टू स्टार्ट द डायमेंशनल एनालिसिस आई विल आस्क फ्रॉम यू सम फिजिकल क्वांटिटीज़। मुझे अभी आप सब बताओगे कि आपने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ 9th क्लास से पढ़ी हैं फिज़िक्स में। टेल मी। सबसे पहले आयुष, आप बताओ कौन सी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी है 11th में। आयुष इज देयर, आयुष इज देयर।